آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے ایک منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے. اسپیکٹرم کی پشت پناہی کچھ مخصوص عناصر کرتے ہیں. جب بھی ریاست اسپیکٹرم پر ہاتھ ڈالتی ہے تو ان کے جھوٹے بیانیے سنائی دیتے ہیں. بہاولپور کی مختلف یونیورسٹیز کے طلباء سے گفتگو میں آرمی چیف نے کہا کہ نوجوان اپنی توجہ بلا وجہ کی تنقید کے بجائے کارکردگی اور فرائض پر رکھیں. جب تک نوجوان افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے عوام کو اشیاء خورونوش کی کم قیمت پر فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. چینی کی سپلائی اور قیمت کنٹرول سے متعلق اجلاس میں کہا کہ گزشتہ مہینوں میں حکومت نے چینی اسمگلنگ پر سخت کارروائی کی ہے. اس وقت ملک میں چینی کا وافر اسٹاک موجود ہے. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. وزیر اعظم وفاقی وزیر پاور ڈویژن ویس لغاری کی ملاقات. پاور ڈویژن سے متعلق امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم سے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود نے بھی ملاقات کی. یہ ملک جس بحران سے بچ کے اب آگے کی طرف نکل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اگر دوبارہ کوئی 12 اکتوبر مسلط نہ ہوا تو انشاءاللہ اگلے سال 2 سال میں پاکستان ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ معاشی بحران سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے. یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ اس کی پبلسٹی کے اوپر میڈیا نے جی اشتہار دے دیے گئے. اس وقت میڈیا جو ہے یہ 4th پلر ہے سوسائٹی کا. بلکہ اگر میں سچ بولوں تو یہی پلر ہے. باقی ٹیم جو ہے وہ تو اب اپنی اہمیت وہ نہیں رکھتے جو پہلے تھی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ کوئی 12 اکتوبر مسلط نہیں ہوا تو پاکستان 2 سال میں معاشی بحران سے نکل جائے گا. فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں وفاقی حکومت اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں SIFC بھرپور کوشش کر رہی ہے. اگر سچی بات کی جائے تو ایک حقیقت ہے کہ ریاست کے 3 ستون اپنی اہمیت کھو چکے ہیں. صرف میڈیا کا 4تھا ستون ہی ملک کو آگے لے کر چلے گا. مخالفین کو کارکردگی کے خلاف کوئی نقطہ نہیں ملتا تو سرکاری اشتہارات کو ایشو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ابھی ہنس برداری ہوئی تھی کوئی انٹیمیشن نہیں تھی اور صرف میڈیا پہ چل رہا تھا. اور میں جس وقت جہاز پہ تھا اس وقت شاید مصطفیٰ بھائی کو فون آیا ہے نا, تو میں اس طرف آ چکا تھا اور ان کو بھی 11th آور میں پتہ لگا تھا. اس وقت میں یہاں آ چکا تھا کراچی. تو آپ کے مصطفیٰ کمال کی ایسے کوئی نہیں کوئی لڑائی کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ میں جہاز پہ تھا, میرا فون بند تھا تو انہوں نے میسج چھوڑا ہوا تھا. خالد مقبول صدیقی کو مصطفیٰ کمال کی کابینہ میں شمولیت کا پتہ بعد میں چلا. جیو نیوز سے گفتگو میں سربراہ MQM نے تصدیق کی کہ انہیں اس بارے میں پیشگی نہیں بتایا گیا تھا. مصطفیٰ کمال سے اختلافات کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مصطفیٰ کمال سے کوئی لڑائی نہیں. یہ بات بھی درست نہیں کہ انہیں مصطفیٰ کمال کو گورنر سندھ ایک ساتھ بٹھاتے ہیں. MQM لندن نہ قانونی ہے نہ تنظیمی طور پر کوئی وجود رکھتی ہے. اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ MQM لندن کے ذریعے بیرونی مداخلت کی کوشش کو روکیں. جیو نیوز کے سوال پر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ الطاف حسین کو چاہیے کہ وہ بلوچستان پر کتاب لکھنے کے بجائے کراچی کا مقدمہ لکھیں. وہ بلوچستان پر کتاب لکھ کر ملک دشمنوں کا مقصد پورا کریں گے. پیپلز پارٹی کا کراچی کے لیے دل اتنا تنگ ہے کہ اپنے میئر کو بھی اختیار دینے کو تیار نہیں. پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ صوبہ سندھ کا نام سندھی صوبہ رکھے. میئر جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس اختیارات نہیں ہے. اس کو اختیار دینے والا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی اسی جماعت کا ہے. اس سے آپ تنگی دل کا اندازہ کریں. تنگی دامہ تو نہیں ہے نا, تنگی دل ہے کہ آپ اپنے میئر کو بھی اختیارات نہیں دینا چاہتے ہیں. یہ ہے کلیئرٹی. یہ آپ کو اس میں تو بڑے مؤدبانہ انداز میں کہوں گا کہ نام چینج کر دیں صوبے کا. بھائی صوبہ سندھ سے سندھی صوبہ رکھ دیں آپ. MQM کو پہلے اپنے بھاؤ کا معلوم ہو جانا چاہیے. اس وقت بیچارے وہ بالکل فارغ ہیں اور میں بات کہتا ہوں وہ آج شاید خالد مقبول صاحب نے بھی اشاروں طرح مان لیا کہ جو MQM ہے وہ PS کی
MQM PSP माफिया के निर्गे में है, खालिद मकबूल बेबस सरबराह हैं, MQM की कोई हैसियत नहीं। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी का जवाबी वार, कहा MQM के अपने इख्तलाफात हैं, MQM ने जमात इस्लामी वाला काम किया है, KDA से 3 अरब रुपए का प्लॉट सिंध हुकूमत खरीद रही है। पीपल्स पार्टी ने काम शुरू किया तो MQM क्रेडिट लेना चाहती है। बल्दियाती इदारों को पुराने मेयर ने तबाह किया, जब KMC मिली तो 30 से 35 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल था। ऐसे इदारे नहीं चल सकते। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर जेलेंस्की के दरमियान कशीदगी, बरतानिया में यूरोपीय रहनुमाओं का सरबराही इजलास शुरू हो गया। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की के साथ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे के सरबराहात समेत नेटो के सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के सदस्य शरीक। इजलास में रूस यूक्रेन जंग खात्मे की कोशिशों, वसीतर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल होगा। इजलास से पहले अतालवी वज़ीर आज़म की बरतानी वज़ीर आज़म स्टारमर और यूक्रेनी सदर जेलेंस्की से मुलाकात। यूक्रेन तनाज़े के हल पर बातचीत। गुज़श्ता रोज बरतानिया ने यूक्रेन को $2.8 अरब का कर्ज देने का ऐलान भी किया है। We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. You're playing. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. We gave you, through your stupid president, $350 billion. We gave you military equipment. Do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. To say thank you. I said a lot of times to American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर जेलेंस्की के झगड़े की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल। वीडियो पर घर घर में तबसरे। अमरीकी कौमी सलामती मशीर माइकल वॉट्स ने कहा कि ये कतई गलत है कि ओवल ऑफिस में जेलेंस्की के साथ मुलाकात घात लगाकर की गई। जेलेंस्की को वाज़ेह करने की जरूरत है कि वो अमन के लिए तैयार हैं। अमरीका यूरोप की सिक्योरिटी जमानतों के साथ यूक्रेन जंग का मुस्तकिल खात्मा चाहता है। सदर ट्रंप से तल्ख मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर जेलेंस्की की गुज़श्ता रोज 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने यूक्रेनी सदर को गले लगा पर बरतानवी वज़ीर आज़म और अवाम का शुक्रिया। शाह चार्ल्स से मुलाकात तय होने पर भी इज़हार तशक्कुर। यूक्रेनी सदर बरतानवी शाह चार्ल्स से आज मुलाकात करेंगे। This is a major tournament. Yes. If this is where the final of the Champions Trophy will be held if India don't qualify. If there's rain for half an hour and the final of a Champions Trophy is pushed into a second day or a reserve day because the ground doesn't drain. The infrastructure to have the super zoppers, the machines that can get rid of the water quite quickly. The ITC should be paying for something like that. And obviously the drainage underneath is not what we see. You go to Australia, you go to Brisbane, it rains for an hour or two, there's puddles everywhere, and within half an hour of it stopping, that rain gets taken away. The same at Lord's, same at most venues around the world now. So. जुमे के रोज बारिश के बाद कज़ाफी स्टेडियम में ग्राउंड सुखाने में नाकामी पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स की तनकीद। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि अगर पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपर सॉकर और दूसरी चीजों के लिए फाइनेंस नहीं तो ICC को देखना चाहिए। बारिश हो जाए तो मैच मुतबादिल दिन पर जाएगा, लेकिन ये मामला ठीक नहीं है। निकास का सिस्टम बेहतरीन बनना चाहिए। कज़ाफी स्टेडियम के नए तामीरशुदा VIP इंक्लोजर के एक वॉशरूम की छत से बारिश का पानी टपकने लगा। ज़राए के मुताबिक वहां वाटर प्रूफिंग का काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल न हो सका था, जो चैंपियंस ट्रॉफी के फौरी बाद मुकम्मल किया जाएगा। The advantage India have in playing in Dubai, only in Dubai, which seems to me to be a hard to quantify advantage, but an undeniable advantage. They're playing at just one venue. Pakistan
host nation, India, home advantage, and that sort of sums it up, really. They're in one place, they're in one hotel, there is no travel, they're in one dressing room, they know the pitch, they've picked for that pitch. I think selection, when they selected, they were very smart, they probably knew what Dubai was going to be like. I mean, look at your own back garden, your players are so, in such a mental state of mind. I couldn't care less about the results as long as we do this. I don't care about, you have to care for your results, you have to play for your country. Any team you play for, you have to care for the results. भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड के साबिक कप्तानों को पूरी ना हो। सुनील गावस्कर ने नासिर हुसैन और माइक एथरटन को मशवरा दिया कि आपको नताइज देखने चाहिए और अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। इन्हें समझने की जरूरत है कि इनकी तनख्वाहें वहां से आती हैं जो भारत वर्ल्ड क्रिकेट को देता है। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल एथरटन और नासिर हुसैन ने भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस दुबई में खेलने को उनके लिए एडवांटेज करार दिया। 250 रन का हदफ हासिल ना कर सके। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो। Not this time, you said the world's best. That is why. Glenn Phillips again. Was it better than a one in game one or not? I don't know. Oh, he's hit that hard. The crowd is stunned. न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली का मुश्किल कैच लिया तो कुछ सेकंड्स के लिए विराट कोहली को यकीन न आया। एहलिया अनुष्का शर्मा भी हैरान रह गई। 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में ग्लेन फिलिप्स ने पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का भी शानदार कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेजा। And even O'Rourke just stands and smiles at that. That is an unbelievable grab. टोक्यो में जबकि विमेन इवेंट में सुट्यून केबीले टाइटल का दिफा करने में कामयाब। टोक्यो मैराथन में पाकिस्तान के 23 रनर्स से शरीक हुए। इस्लामाबाद के बिलाल एहसन पाकिस्तानियों में 23 तरीन रनर रहे। कॉकअप सर्वर पाकिस्तानी खवातीन में सबसे आगे रही। जियो न्यूज के एंकर मोहम्मद जुनैद ने भी टोक्यो मैराथन में हिस्सा लिया। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अशाया ने कहा कि पूरी दुनिया में रमजान के दौरान अशिया के निर्ख कम किए जाते हैं, हमें भी रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। वो रोजाना अशिया फरोनोश के निर्ख खुद चेक कर रही हैं। सहूलत बाजारों में मार्केट से कम निर्ख पर मयारी अशिया की फराहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत। अकोड़ा फटक धमाके पर सीटीडी की तहकीकात जारी। धमाके के जख्मियों समेत 50 से ज्यादा अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए गए। खुदकुश हमलावर के आज़ा डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा दिए। शाहिद खाकान अब्बासी, इकबाल जफर झगड़ा, अमीर हैदर मोती और हाफिज अब्दुल्ला की दारुल उलूम हकानी आमद। मौलाना हामिदुल हक के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। आज मैं पूरा बाजार घूम के एक दाना खजूर भी मुझे अफ्तारी के लिए नहीं मिला। रमजान में यही मसला है कि कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। गरीबों के लिए गैस नहीं है, लकड़ी नहीं है, तो बिजली भी नहीं है। रमजान के महीने में अगर लोग अफ्तारी ना करे, सहरी ना करे तो रोजे किस तरह रखेंगे। 153 रोज गुजर गए। हुकूमत टलपारा चिनार मरकजी शाहराह ना खुलवा सकी। खाने पीने की चीजों, पेट्रोल और अद्वियात की किल्लत से लोग परेशान। मुश्किलात में मजीद इजाफा। पहले रोजे को भी खाने पीने की अशिया दस्तयाब नहीं। पारा चिनार के शहरियों ने जगह जगह एहतजाज शुरू कर दिया।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से अफगान काउंसिल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकिर की मुलाकात। रमजान और ईद उल फितर के पेश नजर सरहद को जल्द से जल्द खोलने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला KP ने कहा जल्द बॉर्डर को खोलने के लिए अफगान सिफारत खाना अपना किरदार अदा करे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इलाकाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मफाद में है। हमने सूबाई सतह पर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जिरगा तश्कील दिया है। वफाकी हुकूमत की तरफ से जिरगे के TORs की मंजूरी का इंतजार है। मैं खुद कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी की हालत जो है वो तशवीशनाक है, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट था या जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटमेंट था, वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ इजला लिबर्टी का ऐलान करने वाले हैं, लिबरेशन का, आज़ादी का। आप खुद लोकल सहाफ़ी हैं, कौन से वो इजला हैं? किसी एक गली का नाम तो उमर अयूब खान, महमूद खान से पूछे बगैर बता दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा है कि वो तस्लीम करते हैं कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की हालत तशवीशनाक है, लेकिन फजलुर रहमान और उमर अयूब किसी एक जिले का नाम तो बता दें जो उनके मुताबिक आज़ादी का ऐलान करने वाले हैं। दहशतगर्दों को रियायत देने की गुज़श्ता हुकूमत की पॉलिसी की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। कोयटा में मुस्तहिकीन में रमजान फूड पैकेज की तकसीम के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू में कहा अदालती अहकामात के बावजूद कौमी शाहराहें बंद कर दी जाती हैं। सड़कें खुलवाने में नाअहली दिखाने वाले डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके बोर्ड बेसिन में शहरियों को असलहे के जोर पर सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शाहजैन मरी को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राबता। तशद्दुद में मुलव्विस शाहजैन के 5 गार्ड्स को कल अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। शहरी पर तशद्दुद का वाकया 19 फरवरी को पेश आया था। पंजाब के सरकारी इदारों की वेबसाइट्स पर मालूमात की फराहमी का तनासुब वफाकी हुकूमत से बढ़ गया। पाफिन की रिपोर्ट वफाकी हुकूमत के महकमे मतलूबा मालूमात का 42% फराहम करते हैं। पंजाब हुकूमत के महकमों में ये तनासुब 52% है। मालूमात की फराहमी में पंजाब का महकमा इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर सबसे आगे। पीटीआई दौर में मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का फैसला। 2019 के 18 केसेस तहकीकात के लिए DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए। फैसलाबाद और DG खान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तहकीकात हुकाम के सुपुर्द। PSC 3 ने शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला मुआयना टीम से मदद हासिल कर ली। उस्मान गुलजार दौर में करप्शन की तहकीकात के लिए महकमों से जरूरी रिकॉर्ड तलब। रिकॉर्ड फराहम न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब असेंबली की PSC 3 अब तक 1.5 अरब रुपए की रिकवरी कर चुकी है। आला अदालतों में 4,457 अरब रुपए के टैक्स रेवेन्यू के मामला ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत नवंबर 2024 में हुए इजलास में बताया गया था कि तकरीबन 2000 रेवेन्यू केसेस मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। हुक्म इम्तना जारी हो चुके। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट में एक ADR यूनिट कायम किया जाए ताकि FBR दीगर रियासती इदारों के ADR निज़ाम की निगरानी की जा सके। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में एक ADR सेल कायम करने की तजवीज़ दी। गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया है कि तमाम चार्ज पार्किंग जो है वो आज से खत्म हो जाएंगी। अगर कोई चार्ज पार्किंग चला रहा है तो वो इलीगल है। बराए मेहरबानी आप हमें मैसेज करें। जो सीनियर वजीर साहब ने बात की है वो कह रहे हैं जो जगह जगह डबल ट्रिपल पार्किंग की जाती है ना उसकी तो इजाजत है ही नहीं कानून। तो उसको हम बाय वे ऑफ एनफोर्समेंट, चाहे वो KMC हो, चाहे वो कोई मुतालका टाउन हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, कोशिश ये करें वो डबल ट्रिपल पार्किंग ना हो। नेचुरली अबॉलिश करने के कानूनी तकाजे होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट 30 जून तक का दिया गया है तो KMC जो है वो 30 जून तक तो उसको कंटिन्यू करेगी। उससे पहले हम काउंसिल में ले जाके इस चीज को अबॉलिश कर देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और मेयर कराची मुर्तजा वहाब के बयानात में तजाद। 17 फरवरी को शर्जील मेमन ने कराची में तमाम चार्ज पार्किंग खत्म करने का ऐलान किया था। आज मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा शर्जील मेमन ने डबल और ट्रिपल पार्किंग के खिलाफ बात की थी। KMC ने पार्किंग के मुआहदे 30 जून तक किए थे। मुआहदे खत्म करने के कानूनी तकाजे होते हैं। मामला सिटी काउंसिल में ले जाकर इसको खत्म करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर साजिशी अनासिर बदगुमानियां फैला रहे हैं। इन अनासिर को नाकाम बनाना सबकी जिम्मेदारी है।
पाक फौज सरहदों पर दहशतगर्दों से लड़ रही है। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब से खिताब में कामरान टेसोरी ने कहा कि मईशत के इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए हम सब एक हैं। कोई चीज भी नहीं सस्ती दे रहे, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੇਟ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ। रेट तो लिखे हुए हैं, सामान तो है नहीं है, अभी देख ले बैंगन लिखा है, बैंगन तो है नहीं है। चीनी का देख ले 140 दे रहा है और वो 10 रुपए का उसका बैग दे रहा है साथ, तो बाजार में 155 है, तो क्या बेनिफिट है आवाम को। रमजान बाजार की जगह मॉडल बाजार का नाम सहूलत बाजार कर दिया और अशिया महंगी। रमजान के पहले रोज सहूलत बाजार में चीनी है ही नहीं। चीनी की कीमत 130 रुपए किलो रखी और बोर्ड 140 का लगाया और थैला 10 रुपए का, तो चीनी बाजार की कीमत पर आ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अफ्तार के औकात में गैस की फराहमी बंद। शहरियों का कहना है कि सुई गैस ने दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस फराहमी का दावा किया था, लेकिन पहले रोजे से ही न सहरी में और न अफ्तार में गैस फराहम की जा रही है। सुई गैस तर्जुमान ने गैस बंद होने से मुतालिक दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है कि गैस फराहमी मामूल के मुताबिक है। 95% इलाकों में गैस दी जा रही है, 5% इलाकों में शिकायत। कराची के इलाके लियाकताबाद में गुजर नाले के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तइल अफराद की ट्रेलर को चलाने की कोशिश, रमासाल हैवी ट्रैफिक से जाम बहक, रिपोर्ट अफराद की तादाद 48 हो गई। गुजरात में गाड़ी पर फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया दुश्मनी की बिना पर पेश आया। फायरिंग के बाद फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी। कराची वाटर कंपनी के पपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, पपरी पंपिंग स्टेशन की तमाम पंपिंग बंद। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है ब्रेकडाउन की वजह से शहर को पानी की कमी का सामना होगा। लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम और DHA के इलाके मुतासर होंगे। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, महकमा जंगी हयात की टीमों की जंग और तौसा बिराज के इलाकों में कार्रवाइयां। नायाब नस्ल के 5 आबी परिंदों और रीछ को गैर कानूनी कब्जे से बाजियाब करा लिया। शिलास में हुकूक 2 डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना 14वें रोज भी जारी। सख्त मौसम में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन का मुतालबात मंजूर न होने पर गिलगित बल्तिस्तान में लॉन्ग मार्च करने का ऐलान। गजा जंगबंदी का पहला मरहला मुकम्मल होते ही इसराइल ने गजा की इमदाद रोक दी। शिमाली गजा में इसराइली ड्रोन हमला, खान यूनिस के नजदीक इसराइली टैंकों की गोलाबारी, 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का अमरीकी तजवीज पर पहले मरहले में तौसी का ऐलान, तमाम गैरकमालियों की रिहाई का मुतालबा। हमास का मुआहदे के मुताबिक दूसरा मरहला शुरू करने और मुकम्मल जंगबंदी पर जोर, कहा मुआहदे से इन्हराफ के नतीजे की मुकम्मल जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक दूसरे मरहले में बाकी रह जाने वाले 59 गैरकमालियों की रिहाई, इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला और जंग का खात्मा शामिल है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के नौजवान परफॉर्मेंस की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। खिलाड़ियों ने चेयरमैन को फिटनेस, स्किल्स और डाइट प्लान के मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत जारी कर दी। कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह को सिर्फ 15 चालों में मात देने वाली महक मकबूल का कहना है कि ग्रैंड मास्टर बनना उनका ख्वाब है। उनका यहां तक का सफर जिंदगी ट्रस्ट की वजह से ही मुमकिन हो सका। वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए ताजिकिस्तान जा रही हैं। महक मकबूल की जियो न्यूज के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में लगाने नाना हो आज तफक्कने ट्रानना हो आज तफक्कने बामना हो जीजी वो जीजी साकना हो से कुम मारा जाकना हो जीजी वो जीजी मंदरी बड़ी गवा तो अंदरी हो जीजी वो जीजी सुमरो कप पाज खुदा से जो
اور خوبصورت لباس، دستار، بلوچی چپل اور مہمان نوازی. آج بلوچ ثقافت سے آگاہی کا دن. مختلف شہروں میں روایتی طریقے سے بلوچ ثقافت کا دن منایا گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی نے کہا بلوچستان کی ثقافت، روایات، مہمان نوازی اور بہادری کی علامت ہے. کراچی میں جرمنی اور امریکہ کے قونصل جنرل بھی بلوچ ثقافت کے رنگوں میں رنگ گئے. All of us at the U.S. Consulate General in